الصلاة خير من النوم۔ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو بھئی، کسی بھی انسان کی اگر خدمت کرنا ہے تو ذات اور برادری بالکل نہیں دیکھنا ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین میرے یہاں ہر طریقے کے لوگ، میرے یہاں پہ جتنی برادری ہیں، چاہے وہ مسلم برادری میں ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سمجھے، کوئی بھی ہو، الحمدللہ رب العالمین میرے یہاں کوئی بھی آتا ہے تو مان سمان برابر دیا جاتا ہے، کیونکہ میرے یہاں لوگ آتے ہیں خدمت کے لیے، میں ان کی خدمت کر دیتا ہوں۔ آتے ہیں کچھ پریشانی لے کر کے تو میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے یہاں یہ کوئی بھید بھاؤ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کیونکہ وہ آتے کیوں ہیں آپ تمام حضرت کو معلوم ہے، میں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں۔ کیسا بھی جادو کا اثر ہو، جادوئی اثرات ہو، جادوئی بندشیں ہوں، جادو کیا ہوا ہو، سمجھے، جیسے کہ کاروبار میں پریشانی ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، کیا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بھی میں دیکھ کر الحمدللہ بتا دیتا ہوں۔ اولاد کے تعلق سے مطلب جو ہے شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، 2 سال، 4 سال، 10 سال، آخر کار اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مطلب وہ چیز ہو نہیں پا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مطلب بندشیں ہو جاتی ہیں، کوکھ بن جاتی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بھی لوگ آتے ہیں الحمدللہ، ان کا بھی علاج مکمل ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جیسے پیشیں پڑتی ہوتی ہیں، سمجھے، حاضری ہوتی ہے، آصف کا سحر ہوتا ہے، جادو کیا ہوا ہوتا ہے، گندا ہو، کالا جادو ہو، الحمدللہ اس کا بھی میں علاج مکمل کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے لوگ میرے یہاں آتے اور جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ کل میرا سفر ہونے والا ہے پٹنہ کا، سمجھے، لمبا سفر ہے، لگ بھگ 28 گھنٹے کا سفر ہے میرا یہاں سے، اور لگ بھگ مجھے 2 دن پہنچنے میں لگ جائیں گے، اور اس کے بعد 2 دن مجھے وہاں رکنا بھی ہے، اور علاج مکمل دینے کے بعد وہ بھی غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں بھائی، گپتا ہیں، ہے نا، تو ان کا علاج الحمدللہ جائے گا میرے پاس سے، میں جا رہا ہوں ان کے گھر جا رہا ہوں، حالانکہ علاج میرے پاس سے چل رہا ہے، لیکن میں ان کے گھر پہ جا رہا ہوں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، ان کا جو کچھ رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ اس کو ختم کر کے آنا ہے۔ تو کل میرا پٹنہ کا سفر ہے۔ اب اس بیچ میں جو ہے شاید میری ویڈیوز بھی آپ کو نہ مل پائے، بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان سے محبت کرنا چاہیے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو۔ اگر آپ سے کوئی کسی کام کی تلاش رکھتا ہے تو آپ کو بھائی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ میرے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ بڑی محبتیں لوگوں کو ملتی ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو آج کا جو وظیفہ میں بتانے والا ہوں 19ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آیت ہے، اور اس آیت کی پاور کیا ہے، اس آیت سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں، اور کیا کیا ہمارا کام بن سکتا ہے، اور کس چیز سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا، اور سن لینا، اور سمجھ لینا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کر لینا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس مقصد کے لیے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر آپ کے اس مقصد میں اگر آپ کی آرزویں پوری نہ ہو، رشید اختر کا یہ گریوان ہے، آپ آ کر کے پکڑ لیجئے گا۔ ارادہ آپ کا بہتر ہو، نیت آپ کی اچھی ہو، اور آپ نماز کے پابند ہونا چاہیے، یہ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو نماز ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور نماز کے قریب نہیں ہے، وظیفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بیکار ہے، کوئی وظیفہ آپ پڑھ لیجئے، بیکار ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بابا رشید، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ولاگ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے، ہر اس انسان کو جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو کائنات سے محبت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آپ لائک کر دینا، شیئر کر دینا آپ ویڈیو کو، اور اگر چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں،
ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए वीडियो शुरू करते हैं बड़ी मोहब्बतों के साथ में। मैं बता रहा हूं, मोहब्बतों के साथ आप समाअत कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वें पारे की एक आयत है, वइज़ा बतश्तुम जब्बारी। बड़ी प्यारी आयत है दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बड़ी ज़ूद असर है। सबसे पहले मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा, तरीका सब वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसका रीजन मैं बता रहा हूं, आखिरकार किस किस लिए और किस किस चीज के लिए हम इस वजीफे को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके घर के अंदर अगर कोई बीमार है और घर के अंदर बीमारी कसरत से फैली हुई है, तो मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर की दवा खा रहे हैं तो खाते रहिए, लेकिन डॉक्टर की दवा के साथ साथ भाई साहब ये आप वजीफा कर लीजिए। अगर आप इस वजीफे को करते हैं, जिस दिन शुरू करें उस दिन से जो है 4 दिन आप दवा मत खाइए, सिर्फ इस वजीफे को करना आप। उसके बाद जो आप दवा खा रहे हैं काफी वक्त से, उसका रिजल्ट आपको सामने होगा। उसके बाद 3 से 4 दिन जो आप वजीफा करेंगे, इसका रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको सामने मिल जाएगा, खुद आप समझ जाएंगे। जैसे कहना चाहिए घर के अंदर, यार हम कहते हैं कि हम भाई इतना कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लाते हैं, लेकिन जो है रुक नहीं पाता है। आखिरकार इसकी क्या वजह हो सकती है? समझे, हम इतनी जोड़ते हैं और इतनी टूट जाती है, आखिरकार क्या वजह है? तो कभी कभी ऐसा हो जाता भाई, अगर हम कोई कारोबार कर रहे हैं ना, तो उसके गंदी नज़रें लग जाती हैं, गंदी शयातीन का, गंदी चीज़ों का मतलब असर भी हो जाता है। उसकी वजह से हमारा कारोबार ठप भी हो जाता है। जो पैसा आता है घर के अंदर भाई वो हो जाता है ख़त्म, बीमारी में, परेशानी में। तो इसी वक्त को ख़त्म करने के लिए ये वजीफ़ा है उस आयत का जो 19वें पारे में है, छोटी सी आयत, वइज़ा बतश्तुम जब्बारी। उसके अलावा कहते हैं कि भाई यार हम तो दवा इतनी खा रहे हैं कि यार दवा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो कमाया दवा में, जो कमाया डॉक्टर को दिया, जो कमाया वो फला हॉस्पिटल में हम गए, जो कमाया फला जगह हम गए दवा लेके आ, किसी हकीम को दिखाया, डॉक्टर को दिखाया, ये किया वो किया। भाई साहब मैं कहता हूं कि आप इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की कसम दोस्तों, जिसने मुझे पैदा किया उस रब्बे कायनात की कसम, इस वजीफे को कर लेना। अगर ये परेशानियां आपके घर से अगर हवा की तरह ना उड़ जाएं तो रशीद अख्तर मुझे मत बोलिएगा, क्योंकि बहुत सीना ठोंक के मैं वजीफे की वीडियोस आप तमाम हज़रात के सामने अपने चैनलों के जरिए से मैं पेश करता हूं। अब मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि दूसरे लोगों को आप फैज़याब होने के लिए, फैज़ पहुंचने के लिए इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना आपका फर्ज बनता है, ठीक है। तो इसी तमाम ही चीज़ों को कैद करने के लिए इस वजीफे को हमें अमल में लाना होगा। अब इसका तरीका आपको मैं बताऊं। दवा खा रहे हैं, छूट जाएगी इंशाल्लाह, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले तो आप नमाज़ों की आदत डालिए। नमाज़ों की आदत डालने के बाद इशा की नमाज आप जब पढ़ें ना, करना कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है और छोटा सा वक्त आपको निकालना होगा। ज़्यादा अगर आपको 20 मिनट का या 30 मिनट का अगर आपके पास वक्त है, तो इसी 30 मिनट में इंशाअल्लाह ताला 30 साल का फ़ायदा हासिल करेंगे। ये मैं जानता हूँ और इससे मतलब फ़ायदा मैंने लिया हुआ है और दूसरे लोगों को भी दिया है अल्लाह के फजल करम से, ठीक है। तो जहाँ पर आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद में अगर खाना नहीं खाया तो खाना खा लें, और खाना अगर खा लिया है तो आप वहाँ पर नमाज पढ़ने के बाद उठे नहीं, दुआ वगैरह मांग लीजिए। और हमको करना क्या है, जब वजीफ़ा हमको करना है ना, तो सबसे पहले तो वजीफ़ा जब करने के लिए हम बैठेंगे तो 7 मिर्चें आपको, वो मिर्चें जो सूखी होती हैं, लाल सूखी वाली, समूची पूरी वाली मिर्चें, समझे, जिसके डंठल जो होते हैं ना वो टूटे हुए ना हो और मिर्च भी कहीं से डैमेज ना हो, साबुत मिर्च होनी चाहिए। 7 मिर्चें लें और 7 मिर्चें लेने के बाद में, नहीं 7 मिर्चें नहीं लेना है, हाँ 7 मिर्चें लेना है। और 7 मिर्चें लेने के बाद आप वजीफ़ा स्टार्ट कर दीजिए। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े शुरू में, और उसके बाद आपको जो मैंने आयत बताई, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन,
19वें पारे में है। इस आयत करीमा को आप 41 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 41 बार। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक हमने 11 बार पढ़ लिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु। इस तरीके से भी अगर कोई दुरूद याद नहीं इस तरीके पढ़ सकते हैं। व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन 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 व इज़ा बतश्तुम बतश्तुम जब्बारीन। मैंने 6 बार पढ़ा, अभी 30 सेकेंड हुए और हमको पढ़ना है 41 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। अगर आपका 5 मिनट का वक्त है 24 घंटे में, अगर आपके पास पैसे बचाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना चाहते हैं, तो 5 मिनट इस वजीफे में इंशाल्लाह निकाल करके दे दीजिए। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 41 मरतबा ये आयत जो मैंने बताई आपको, फिर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और जो 7 मिर्चें हमने लेके रखी हुई हैं ना, उन मिर्चों पर इंशाअल्लाह ताला पढ़ के दम कर दें। दम करने के बाद तेज आग जलाना है। देखिए ये मिर्चें तेज आग पे ही जल सकती हैं। अब किसी का सवाल ये हो कि हमारे घर में गैस है, उस पर जलाएं, तो भाई साहब उस पर नहीं जल पाएंगे। तेज आग, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उसमें आग लगा के और तेज आग में इन 7 मिर्चों को सबके ऊपर, जो हमारे घर में लोग हैं ना, वजीफा करने के बाद दम करिए। दम करने के बाद में जितने भी हमारे घर के अंदर लोग हैं जो बीमार है उसके ऊपर से, और जितने भी लोग हैं सबके ऊपर से 7-7 बार उतार लीजिए। 7 मिर्चों को हर एक इंसान के ऊपर से 7 बार घुमा के उतार लीजिए। जैसे इंसान ये एक बैठा हुआ है, यहाँ ऐसे करके घुमा के 7 बार उतारिए सबके ऊपर से, और तेज आग में आपको मिर्चें उसी वक्त जलानी होगी। मिर्चों को आपको रखना नहीं है, रात में ही वजीफा कीजिए और रात में ही आपको मिर्चों को जलाना होगा। मुतावातिर इस अमल को आप करेंगे 21 से 40 दिन तक। मेरा दावा है उस रब्बे कायनात की जात पर इंशाअल्लाह ताला यकीन और एतमाद है मेरा, 1 हफ्ता नहीं गुजरने पाएगा इंशाअल्लाह दवा से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चीज ही मैंने आपको ऐसी ही फरमाई है। अब आपकी मर्जी के आप चाहे करें या फिर छोड़ दें। मेरा काम था बताने का, सो मैंने आपको बताई। अब आपका काम है इसको करने का, तो वो आपकी मर्जी, आप करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। जी हाँ, बाकी इंशाअल्लाह अगर रशीद अख्तर को अगर आपने दुआ नहीं दी तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा बताया हुआ वजीफा, मेरी बताई हुई चीज जो जिस इंसान ने की अल्लाह के फजल करम से, समझ रहे, तो फिर कामयाबी यार ना मिले तो मजा ही नहीं आएगा। रशीद अख्तर फिर कभी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचाएगा। 11 महीने मुसलसल मैंने कोई वीडियोस अपने चैनल पे नहीं डाली, क्योंकि भाई मेरा घर नहीं था। अब जो है काम चल रहा था, घर बना है, तब जो है मैंने आराम से जो है वीडियोस को शूट करना शुरू कर दिया है। तो हमारा वजीफ़ा यहीं तक था। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों के साथ इसको कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब में शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखा करो आप देखने के बाद। इंशाअल्लाह रखते हैं, हम अपनी वीडियो को यहीं पर इंशाअल्लाह ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखते रहिए सज्जाद निज़ामी व्लॉग, आपका अपना यूट्यूब चैनल।